Hi everyone, my name is Bhavish Kumawat. So, firstly, I have not been very active since a very long period of time on my channel. I have not been making any content. I have not been putting out any videos on different strategies on risk management, trade execution. So, yes, and secondly, what I'm looking forward to is I'll be making few contents. I'll be making a framework of different strategies that works in different market conditions, which will help a lot of traders out there to make better decisions in terms of trade execution. So if you are new to this channel, please do subscribe and please do share with your friends and family members so that even they can have a look at it. They can get some insight, some knowledge, some information which might help them to make a better decisions. So yes, today we are going to talk about a bit of market outlook and how index IT been falling, what exactly the reason is, and where Nifty IT is trading right now. What are the important levels for Nifty IT sectors? So firstly, if I take you on the Nifty index, IT index chart, you see Nifty IT almost opened gap down on Friday near to 5.6%, almost near to 5%, more than 5% gap down, एंड फिर वहीं से रिकवर किया हुआ है 31,350 से लेकर 32,680 के लेवल्स पर क्लोज किया हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट 1.5% डाउन. सो 5% से ऑलमोस्ट 3.5% रिकवरी करके 1.5% नेगेटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी आई टी इंडेक्स. सो इफ़ आई टॉक ऑन मेरे ट्रेड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ जो मैंने एग्जीक्यूट किए थे फ्राइडे को, आई हैव made about 35,000 in that single day itself. So I took positions on Infosys web futures. You can see the realized breakdown. I have bought on 13th and I have sold on 13th. Same goes for Wipro as well. I have bought on 13th and sold on 13th. So overall 35,000 ka profit I have made on the same day itself. And if I take you through the trade timings and everything, if you check here, Infosys मैंने दो लॉट लिया हुआ था 10-13 को. 6 मिनट के बाद आई टुक विप्रो का एक लॉट 10-19 को फ्यूचर्स का, एंड देन आफ्टर सम टाइम अभी आप प्रोबेबली आफ्टर 1 आवर मैंने दोनों ही लॉट सेल ऑफ कर लिया बिकॉज आई वॉज सिटिंग एट अ गुड प्रॉफिट. मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट मेट हो चुका था. तो येस 35,000 आई मेड इन अ सिंगल डे. Now if I tell you, let me take you through index IT first. Nifty IT index is trading at a very important support zone, or we can say it a demand zone as well. So if you just check here, was September, June 2024. The Nifty IT never came back. Uh, you know, after a period of time, then again it came down to April 2025. It bounced back towards upside, and again it came down today on Friday, I mean to say. So yes, अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है अभी. अगर हम यहाँ से रैली भी देखें इस ये जोन से ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट 47% का बुलिश मोमेंटम क्रिएट हुआ था इन अ मैटर ऑफ जस्ट 5 to 6 months. वहाँ से सेल ऑफ आया हुआ है, देन अगेन उसी लेवल से फिर से अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ है एंड इट वेंट टिल 25%. अब अगेन उसी मोमेंटम पे है. अगर आप देखें यहाँ पे, इफ आई जस्ट हाईलाइट दिस ग्रीन डॉट जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी आई डी वॉज डिड कम टू 31,200, 31,150, 31,300. सो यहीं से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस ले रहा है निफ्टी आई टी, एंड आई बिलीव दिस could be the bottom again for the index IT, because usually what happens जब भी मार्केट को बॉटम क्रिएट होना होता है, मार्केट ओपन्स गैप डाउन एंड फ्रॉम दैट गैप डाउन इट नो एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट हो जाता है. वहीं से छोटा सा लो बना के बहुत अपसाइड में मार्केट मूव करता है. सो काफ़ी हद तक देखा गया है कि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से कि
जब जब मार्केट ड्रास्टिकली गैप डाउन ओपन हुआ है और वहीं से रिकवर हुआ है 3-4%, तो उसी लेवल्स को ऑलमोस्ट बॉटम क्रिएशन हो जाता है कोई भी सेक्टर या कोई भी स्टॉक्स को लेकर। तो आई बिलीव ये एक बॉटम हो सकता है, आई बिलीव यहाँ से एक रैली फिर से आ सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितने टाइम में आएगा ऑब्वियसली। तो अगर हम यहाँ पे देखें अगेन निफ्टी आईटी, 31,400 से लेकर इट स्ट्रेट अवे वेंट बैक टू 46,000, अगेन ये फॉल किया हुआ है 31,000, 31,000 के आसपास, अगेन वहाँ से बाउंस किया गया हुआ है 39,000, ऑलमोस्ट 40,000 के नियर, 39,600, अगेन इस तरफ आया हुआ है। इफ़ यू लुक एट द पैटर्न इट इज़ समवॉट एक सिमेट्रिकल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आपको जानकारी है डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में, तो यू स्टार्ट टू रियलाइज़ कि ये कैसे मूव हो रहा है मार्केट। येस, बट यहाँ पे जो सेल ऑफ आया हुआ ना, दिस वाज रियली नॉट एक्सपेक्टेड। अब अब यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल हु विल गेट कंफ्यूज कि ये डब्ल्यू पैट एम पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। पहला जो टॉप है हमारा वो बना हुआ है, वी चेक हियर, दिस इज द टॉप एंड देन दिस इज द टॉप, राइट। एक सेकेंड हाईलाइटर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले का ऑन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है, देन यहाँ पे एक टॉप बना हुआ है। नाउ पीपल विल गेट कंफ्यूज कि यार नो डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, आई बिलीव यहाँ से तो फिर ये और नीचे की तरफ जा सकता है। बट अगर आप देखें नीचे की तरफ 31,000 लेवल्स की तरफ, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड भी क्रिएट किया गया हुआ है, काफ़ी क्रिएट किया हुआ है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ प्राइस जो है वो अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाया हुआ है, काफ़ी बुलिश मोमेंटम हमने विटनेस किया हुआ है पास्ट में ये लेवल्स के यहाँ से। अब मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मैं डिलीट कर देता हूँ ये, एक सेकेंड। अब मोस्टली व्हाट वी आर अज्यूमिंग दैट निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है इट माइट कम डाउन टू एटलीस्ट 33,300। अगर मैं आपके लेवल्स यहाँ पे बना दूँ तो सिंपली आई जस्ट ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। आई थॉट कि यहाँ से बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, बट जो कि नहीं हुआ है एंड गैप डाउन खुला हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम भी देखें यहाँ पे आई बिलीव काफ़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हुई है यहाँ पे, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स की वजह से ही गैप डाउन होने के बाद 3 से 4% का रिकवरी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के वॉल्यूम से पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हुआ है यहाँ पे। नाउ इफ़ आई टॉक ऑन सिमिलरली, आपको चार्ट में बता दिया मैंने कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट जोन्स पर है निफ्टी आईटी। यहाँ से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि एक बॉटम क्रिएट हो सकता है और फिर से ऊपर की तरफ रैली ग्रेजुअली आ सकती है। सो इवन इफ आई टेक दिस लेट्स से जस्ट इन नो एज पर द पैटर्न, इवन इफ अगर हम एनालाइज भी कर ले यहाँ से इस तरफ गया हुआ ही है, देन अगेन एक सॉर्ट ऑफ सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग वी कैन से, अगेन इट वेंट अप लाइक दिस, फिर यहाँ पे आया हुआ है, फिर यहाँ पे आया हुआ है, फिर यहाँ पे। नाउ पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट ये यहाँ तक तो आ ही सकता है, विच इज़ 33,479 लेवल्स जो है 33,479। अगर इसको ब्रीच कर जाता है तो माइट भी ये यहाँ पर भी आ सकता है फिर से। अब ये कितने टाइम में आएगा, नो बडी इज़ श्योर, नो बडी इज़ रियली श्योर कि क्या टाइम फ्रेम में आ सकता है ये। और अभी हम देखें कि ये क्यों ड्रास्टिक, इतना बड़ा ड्रास्टिक फॉल आया क्यों है। एंथ्रोपिक इज़ एन आईटी कंपनी बैक इन अमेरिका, उन्होंने क्लाउड कोवर्क एंड क्लाउड कोड डेवलप किया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है, जिसकी वजह से $285 बिलियन का सेल ऑफ आया हुआ है ग्लोबल सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज़ में, जहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने सिग्निफिकेंट लॉसेस विटनेस किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लाउड कोवर्क एक ऐसा टूल है
एक ऐसा एआई एजेंट बन गया है डेवलप और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जहाँ पे जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती है और या फिर नो डेटा एनालिटिक्स होती है, जो भी एक्टिविटीज़ है, आईटी एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़, जो एक आईटी कंपनीज और उनके आईटी एजेंट्स से मैनेज हो जाता था, अब ये जो है बिकॉज ऑफ दिस क्लाउड को वर्क, वो सारी एक्टिविटीज़ दोनों एक एआई एजेंट ही मैनेज कर पाएगा। अब अब उसकी वजह से जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, जो आउटसोर्स करती है अपना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का काम, या अपना डेटा एनालिटिक्स का काम, अब बाकी आईटी कंपनीज़ को बैक इन इंडिया, अब वो चांसेस है कि उनकी अर्निंग्स काफ़ी वाइप आउट हो जाएगी, उनका रेवेन्यू काफ़ी कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। अगर एआई रिप्लेस कर रहा है, एआई एजेंट को अगर रिप्लेस कर रहा है एक आईटी एजेंट को, लाइक अ फिजिकल एजेंट, लाइक अ मैन और अ वुमेन, तो आई बिलीव काफ़ी हद तक उनका रेवेन्यू अर्निंग्स पे हिट हो सकता है ये, कमिंग क्वार्टर, कमिंग हाफ, ईयरली, हाफ ईयरली, एनुअल क्वार्टर एज वेल, एनुअल रिपोर्ट्स में, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स में। तो एक काफ़ी बड़ा चेंज, काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया हुआ है। और अगर आप क्लाउड कोड भी देख लें, क्लाउड कोड इज़ नथिंग बट अगेन इनका जो एंथ्रोपिक एआई है, इन्होंने सारा सब कुछ, यानी कि जो कोडिंग होती है, जो एडिटिंग होती है, जो आईटी रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है, जो एक वेबसाइट डेवलपर, एक आईटी पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर होती थी, ये सारी चीज़ें अब जो है वो एआई एजेंट ही कर लेगा सब कुछ। यानी कि आप सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूं कि एआई रिप्लेस कर रहा है मैन पावर को, क्योंकि आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, हम लोग ज़्यादातर मैन पावर में बिलीव करते हैं, जो आईटी की सारी एक्टिविटीज़ मैनेज करते हैं। अब धीरे धीरे जब एआई बिल्ड होगा, अगर एआई ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये सारे लोगों का काम काफ़ी हद तक चला जाएगा, बिकॉज एआई सारा काम कर चुका होगा उनका बहुत कम समय में, काफ़ी टाइम एफिशिएंसी होगी उसमें, काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैसिव हिट आया हुआ है आईटी कंपनीज़ में। बट येस, आई बिलीव इफ़ आई टॉक ऑन द वैल्यूएशंस, इनका पी रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक लो हो चुका है, मतलब आईटी कंपनीज आर एक्चुअली ट्रेडिंग एट अंडर वैल्यूड और मे बी क्वाइट रीजनेबल नाउ। सो गोइंग फॉरवर्ड वी माइट, दे माइट, इंडियन भी काफ़ी हद तक पीछे नहीं है। आई लुक एट द पीयूष गोयल स्टेटमेंट, विच इज़ हु इज़ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया हुआ है कि कंपनीज जो है वो रेडी है एआई लेड डिस्ट्रप्शन के लिए। इसका मतलब है कि इनफैक्ट इंडिया भी अभी लॉन्च कर रहा है नीति आयोग फ्रंटायर टेक हब का रोड मैप, जो कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ एड्रेस, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नीति आयोग फ्रंटायर हम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है अपने फ्यूचर्स को लेकर। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि कंप्लीट फेथ है, उन्हें पूरी तरह से विश्वास है इस इकोसिस्टम पर। और साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनक्रेज कर रहे हैं वो नो इन्वेस्टर्स को, जिनके पास कैपिटल है, वो कंसिडर करें आईटी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो पीयूष गोयल सर से कही हुई है अबाउट आईटी कंपनीज। एंड सिमिलरली इफ वी लुक एट दिस, आफ्टर अ क्रैश, आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 3.5% रिकवर कर चुका है फ्राइडे को। अगेन पीयूष गोयल ने कहा हुआ है यहाँ पे कि इट्स टाइम टू पिक आईटी स्टॉक्स। सो आई बिलीव आईटी कंपनीज का माइट बी बॉटम आउट हो सकता है ये। अगेन एज आई सेड, एंथ्रोपिक की एआई tool, which is not an AI tool anymore, it's an AI agent after the launch of cloud cowork and cloud code. आई बिलीव इंडिया भी अभी कुछ एआई में उनको काम उनका काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और उसके लिए ऑब्वियसली मैन पावर भी लगेगा, एंड आईटी कंपनीज विल डू वेल इन गोइंग फॉर इन गोइंग इन कमिंग फ्यूचर। ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो ट्राई टू गेट इनटू आईटी स्टॉक्स rather than trading in any other sectors or any other companies or any other index. अगर आप निफ्टी 50 है तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड इन निफ्टी 50, बट इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन टी सी एस, नो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50, देन आप टी सी एस
IT कंपनीज में भी ट्रेड कर सकते हैं टूवर्ड्स बाइंग साइड, टूवर्ड्स बाइंग कॉल ऑप्शंस. यू कैन गो फॉर फ्यूचर्स बाइंग और यू कैन मे बी शॉर्ट पुट ऑप्शंस एज वेल. आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं फॉर इन्फोसिस, TCS, you pick anything, all the IT stocks are doing well. Also, if you look at the volumes looks fantastic. काफ़ी institutional buying हुई है यहाँ पे. So yes, the overview is that NFT IT is expected to एक बॉटम शायद क्रिएट हो सकता है अभी, एंड नो एक रैली फिर से देखने मिल सकता है अभी हमें NFT IT सेक्टर में. मे बी अ क्विक बाउंस एंड मे बी ग्रेजुअली स्लोली NFT IT फिर से ऊपर की तरफ आ सकता है. So yeah, that would be all for today, and I believe I've been come for a use to share meaningful information about Nifty IT index, about Nifty and overall market outlook. So going forward, if you need any more, if you want me to put on more contents on my strategies, how demand and supply works, and how you just wait patiently for the price to come down at your levels. अगर आप चाहते हैं कि मैं डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करूँ, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिबोनाची लेवल्स. सो ये सारी इंडिकेटर्स हैं जो एक्चुअली मैं आप काफ़ी हद तक आपका एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करता है आपकी स्ट्रैटेजी में, और आपको हेल्प करता है एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड लेने के लिए, जहाँ पे आपका रिस्क मैनेजेबल होता है. आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको पोजीशन साइजिंग क्या तक लेनी चाहिए आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से. ये सारी चीज़ें हैं, इट्स क्वाइट वास्ट. ऐसा नहीं है कि बस हमने ट्रेड डाल दिया और ट्रेड प्रॉफिट में बन गया. इट नेवर हैपन लाइक दैट. तो जब भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर मैं डालूँ स्ट्रैटेजीज कंटेंट के थ्रू मेरे चैनल पर, तो आप प्लीज़ पिंग करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और रेगुलरली फिर आल बी कमिंग एंड आल बी मार्केट्स के बाद साथ साथ आल बी शेयरिंग स्ट्रैटेजीज एज वेल. तो आप समझिए ज़रा कि आपको किसको फॉलो करना है. आप मुझे भी फॉलो ना करिए, इट्स रियली ग्रेट, बट आप उस इंसान को फॉलो करिए जो आपको टेक्निकल्स के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ज्ञान दे रहा है, लाइक फंडामेंटल्स हो गए, लाइक डिफरेंट पी एंड PV रेशियोज़ हो गया, जो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है हमको कि कौन सा स्टॉक कब हमको बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, आपका पोजीशन साइजिंग कैसे क्रिएट किया जाए. ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए और फिर आप फॉलो करिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वेल एंड गुड, आप उसी से स्टे रहिए फिर. तो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. Again, if you're not subscribed, if you're new to the channel, please do subscribe, please do share with your friends and family members, and I'll be keep posting videos in future. Thank you.